Good day, everyone. So, we are coming with a new chapter, that is chapter 4, organizing. Already we have completed about the chapter 3, that is planning, that is the first function of management. Now, the second function of management is organizing, and this chapter is related with the organizing. So, what do you mean by organizing? Organizing means the arrange of work in order and related to the employees and divide the authority and responsibility among the employees is called organizing. Now your introduction is given. The goal of this organization is set on the basis of planning. Whatever the organization goal is depends upon the planning. The success of management is not only based on planning but also the effective implementation of planning. Management success, it doesn't mean that only based upon the planning but also to implement the plan. So in the second function we are going to implement the whatever we have planned, we are going to implement in the actions, right? The formal administrative structure that is formed to enable effective or implementation of planning is called organizing. फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है टू इम्प्लीमेंट द प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. Why organization necessary? Whenever more than two persons working towards the achievement of goals, then the organization is essential. तो जब भी कोई एक से ज़्यादा लोग अगर टीम में काम कर रहे हो to achieve some any goal, common goal, then organizing structure is required. Now, the success and goal achievement of any unit depends upon the proper division of work. कोई भी गोल, कोई भी बिजनेस का अचीवमेंट किस पे डिपेंड करता है? अगर आपने वर्क को यानी कि टास्क को डिवाइड किया हो, देन डिस्ट्रीब्यूट द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब आपने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया हो, और डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी अमंग द एम्प्लॉय. एंड द थर्ड वन इज डेलीगेट, मतलब टू गिव authority among the employees so that our goals become easy. That is called organizing. The objectives which are determined at the time of formation organization process are methodological applied for the same. Organization inevitable, hence it is said that management is the brain of business enterprise, planning is soul and the organization is the body. नाउ मैनेजमेंट इज़ अ ब्रेन, यानी कि हम सोचते हैं दिमाग से, तो मैनेजमेंट को ब्रेन कहा गया है बिकॉज वी थिंक. एंड प्लानिंग इज़ अ सोल, प्लानिंग एक क्या है, सोल की तरह है. और ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है हैंड, लेग, आइज, स्टमक, दीज आर द स्ट्रक्चर, राइट. और हर एक स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है काम का. तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक स्ट्रक्चर की तरह ही है, ठीक है. हमारा गोल तो है मेन, बट उसको अचीव करने के लिए हमने हर एक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़. और उसके बाद ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड, ठीक है. तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. मतलब इट इज स्ट्रक्चर लाइक अ बॉडी, सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी बोला गया. नाउ इट इज सेड दैट मीनिंग in general word, the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility toward the people actively engaged for common goal is called organization. Structure यानी कि एक बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे दिया है कि स्ट्रक्चर यानी कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. जैसे हर एक बॉडी पार्ट होता है ना, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हैंड, लेग, ठीक है. दीज आर द स्ट्रक्चर, राइट. फिंगर्स, ये स्ट्रक्चर है, ये मेन है, हैंड है, लेग, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे जैसे फर्स्ट एक मैनेजर आएगा, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैंने आइडेंटिफाई, जैसे सपोज मैंने प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की, हाँ मुझे ये एक्टिविटी करनी है, तो मैंने वही एक्टिविटीज़ को हर एक डिपार्टमेंट में फॉर्म कर दिया. जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए. तो सारी जितनी भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेंगे, सेल्स एक्टिविटीज़ है वो सेल्स डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाई होगा. और उसके बाद मैंने हर एक एम्प्लॉयज़, हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दिया.
उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि इंटर रिलेशन यानी कि इन दोनों के बीच, डिपार्टमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, ठीक है, उसका एक रिलेशनशिप बन गया, जिससे हमें पता चलता है कि हमें रिपोर्टिंग किसको करना है, हमें किसके ऑर्डर्स फॉलो करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इट एनेबल्स, यानी कि टू गिव डेलीगेशन, टू डेलीगेट द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल सो दैट दे कैन फंक्शन, दे कैन एक्टिवली वर्क फॉर द कॉमन गोल, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन दिया है चेस्टर बर्नर्ड, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाई द कोऑपरेशन ऑफ टू और मोर पीपल एंड द कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। द एक्टिविटी यानी कि कोई भी टास्क विच इज़ कंडक्टेड बाय कोऑपरेटिंग मतलब सबके साथ में मिलकर अगर कोई आप एक्टिविटी करते हो, उसको बोलते हो आप ऑर्गेनाइजिंग, मतलब एक टीम वर्क की तरह। लोई एलन ने बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लासीफाइंग द वर्क। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आइडेंटिफाई यानी कि आइडेंटिफाई करो वो कौन सा काम है जो आपको परफॉर्म करना है, क्लासीफाई वही टास्क को आप क्लासीफाई कर दो, यानी कि एक नेम दे दो। जैसे प्रोडक्शन आपने फाइंड आउट किया कि प्रोडक्शन से एक्टिविटीज़ है, तो मैंने एक नाम क्लासीफाई कर दिया कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एंड क्लासीफाई द वर्क टू बी परफॉर्म, कौन सा आप काम यानी कि वर्क परफॉर्म करने वाले, उस हिसाब से आप क्लासीफाई कर दो। डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी कि उसके बाद आफ्टर फॉर्मिंग द क्लासीफाइंग द ऑल एक्टिविटीज़, देन you delegate, you give the responsibility and authority and establish relations for the purpose of enabling people to work most effective together in accomplishment of objective। पहले आपने आइडेंटिफाई किया कौन सा टास्क आपको परफॉर्म करना है, कौन सा काम आपको परफॉर्म करना है, उसके बाद वही काम को आप क्लासीफाई कर दो कि ये प्रोडक्शन से है, ये सेल्स से एक्टिविटीज़ है, या ये फाइनेंस से। देन उस हिसाब से हर एक एक्टिविटीज़ को के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी डेलीगेट मतलब उनको सौंप दो, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो। जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने आइडेंटिफाई काम, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैंने मैनेजर बनाया, मैनेजर के अंडर में एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है, सो दैट they will work systematically and our goals become easy। so ये लोइस एलन का डेफिनेशन है। नाउ कंसेप्ट दिया है, it is inevitable to have efficient organization for effective administration of management process। most of the problem management arises due to ineffective organization of management। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं मैनेजमेंट में जब ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉर्म ना किया हो, ठीक है। हैंस द बिजनेस यूनिट कुड not achieving its specific goal in specified time। और बिकॉज ऑफ इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे गोल्स टाइमली अचीव नहीं हो पाते। इफ़ द बिजनेस यूनिट हैज़ अ कैपेबल एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, देन through optimum use of resources, time, energy, money can be saved and problems in the activities of business can be avoided। अगर प्रॉपरली आपने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना दिया हो तो आपका टाइम, एनर्जी, मनी भी सेव्ड होगा और हमारी सारी एक्टिविटीज़ भी अच्छे से होगी और कोई प्रॉब्लम्स एक्टिविटीज़ में नहीं आ पाएगी। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द कंसेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है, जहाँ मोर देन 2 people वर्किंग टुगेदर, where 2 or more person working together, the structure of work accomplishment is an effective manner is called organizing। या डिलाइन कर लेना। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन मतलब को अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अरेंज करना सारी एक्टिविटीज़ को और उसको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना एम्प्लॉयज़ के बीच में, और एक इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, जिसे हमें पता चलता है कि हमें किसको रिपोर्टिंग करना है, हमारे किसके ऑर्डर्स फॉलो करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। In organization, authority and responsibility are delegated to the group of people gathered to achieve a common objective and interrelation between establish them। For these, the human body is an excellent example। Human body, हमारे पास माइंड है, ठीक है। माइंड कब काम करेगा, हम सोचेंगे तब
हमारे बॉडी के पार्ट्स जितने भी है, हैंड, लेग, वो अच्छे से काम होंगे। हर एक अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है हमारा ह्यूमन बॉडी का। सेम वे ऑर्गेनाइजिंग में भी ये, इसमें भी हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे एक मैनेजर है, नीचे मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़। हर एक डिपार्टमेंट में मैंने एम्प्लॉयज़ को डाला हुआ है, एम्प्लॉयज़ के नीचे वर्कर्स होंगे, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है। एक मेन गोल्स को अचीव करने के लिए हर एक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई और हर एक अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे तो हमारा मेन गोल्स अचीव्ड होगा। द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट, राइट। हर एक अपने बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ काम करते हैं। हैंड का कोई अलग एक्टिविटीज़ है, लेग का अलग है, ठीक है। तो वैसे ही है कि ऑर्गेनाइजिंग में भी एंड ह्यूमन बॉडी इज़ कोऑर्डिनेट टू वन अनदर, तो हर एक पार्ट कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट है, कनेक्टेड है, ठीक है। हमारे कोई भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सेम वे हमारे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। तो हर एक डिपार्टमेंट जो मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म किए है वो हर एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड यानी कि अलग कनेक्टेड है। I hope you understand what do you mean by organizing. In the next video, we are going to continue our next topic, that is characteristic of organizing. Thank you.